ایک ایتھسٹ نے کسی دوسرے ایتھسٹ سے یوٹیوب چینل کے اوپر سوال کیا کہ یار ہمیں بتاؤ مرنے کے بعد کیا ہوگا. غالب اس کا ایک بہت بڑا کویشچن تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جناب اگر آخرت نہیں ہے تو یہ سارے ان کو اگر کسی بھی ایتھیس کو آپ نے پکڑنا ہو یا کسی بھی ایسے ملحدوں کو پکڑنا ہو تو آپ سب سے پہلے پوچھے کہ بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو یہ ایک کویشچن تھا جو کئی لوگ مجھ سے کرتے ہیں, بلکہ میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو آج سے ایتھیسٹ ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ بس میرا یہ لاسٹ کویشچن تھا. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تو آپ بھی بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں, کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے, جتنی مرضی گپیں چھوڑ دے. پرابلم یہ ہے کہ ان میں سے ثابت کون کرے گا کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا. ایتھزم وہ ریلیجن ہے جو خیالات کی بنیاد پہ چل رہا ہے, زیادہ تر وہم و گمان جس کو میں کہتا ہوں. کیسے؟ جس نے سوال پوچھا وہ کوئی بگنر ہوگا یا کوئی بھی ہوگا, اور جس نے جواب دیا وہ باقاعدہ یوٹیوب چینل چلا کے پریچنگ کر رہا ہے ایتھزم ریلیجن کی, لیڈر کے طور پر, پیشوا لیڈر, جو بھی کوئی کسی مذہب کے پیروکار بن کر کسی مذہب کے اوپر بیٹھا ہے اور اس کی پریچنگ کر رہا ہے تو وہ اس کا لیڈر بنا ہوا اس مذہب کی طرف سے, چاہے وہ ایتھزم ہو, چاہے اسلام ہو, اور کرسچینٹی ہو, کوئی بھی مذہب ہو, جو بھی نمائندہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے لیجنڈ دین اسلام کی طرف سے ہے نا, تو ٹھیک ہے, ایتھسٹ کے جتنے ہیں وہ ایتھزم کی طرف سے. تو اس نے اس کو جواب یہ بتایا جو بتایا, اس میں کوئی اس نے ثبوت تو دے نہیں سکا, اس نے بھی بونگی مار دی. ٹھیک ہے, اب لیجنڈ سے سنو اس کا جواب. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک مرنے کے بعد وہ ہوگا جو آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دو, میں اس کے ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بولو کتابوں کی باتیں ہو جائیں گی. کتابوں کی بات پہ جانا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کتابوں کے ساتھ ہی بات کرنی ہوتی تو پھر آلریڈی بہت سارے یوٹیوب کے چینل چل رہے ہیں جو کتابوں کے بنیاد پہ ہیں. ہماری کتاب میں یہ لکھا, فلاں لکھا, فلاں لکھا ہے, صدیاں گزار دیں کتابوں سے لڑ کے. آگے کی بات کرتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے. ٹھیک ہے, یہاں تک تو کامن سینس کام کرے گا, عقل چلے گی. تو یہاں پہ دیکھ لو کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں روئے زمین کے اوپر, گلوب کے اوپر, جب وہ مرتے ہیں تو اس کائنات کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے کہ ہر مرنے والے انسان کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ لاش سڑنا گلنا شروع ہو جاتی ہے. یا خود بخود ہو یا نہ ہو اس کی ڈیٹیل میں چھوڑ دو جانا, لیکن ہو تو رہا ہے, اتنا تو مانتے ہو. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ سب انسانوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا. اچھا, یہ کچھ انسانوں کے ساتھ, ایک خاص طبقے کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا کیسے؟ وہ خاص طبقہ وہ ہے جو صرف ایک خدا کو مانتا ہے, ایک خدا کو مانتا ہے, ایک مخصوص خدا کو مانتا ہے, اور باقی تمام خداؤں کو ریجیکٹ کرتا ہے. اچھا, اب کون ہے وہ ایک خدا؟ وہ اللہ ہے, اور وہ صرف اپنے نیک مسلم پیروکاروں کی لاشوں کو محفوظ کر دیتا ہے. باقی ان کے علاوہ تمام انسانوں کی لاشوں کو بدبودار کر کے سڑا گلا دیتا ہے. یہ اللہ کرتا ہے بائی ڈیفالٹ, سسٹم اسی کا. اچھا, کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہی کر رہا ہے؟ اور واقعی میں ایسا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عیسائیوں میں, یہودیوں میں, یا بدھزم میں, یا دوسرے مذاہب کے اندر بھی تو ہوتے ہیں کہ وہ لاشیں کہیں سے مل گئی, وہاں سے مل گئی. تو اس کا بھی جواب سن لو. محمد ذیشان سے جس چینل پر ہو جا کے دیکھ لو کہ ایکسپوز کیے ہوئے غیر مسلموں کے ہی ثبوتوں سے دکھا کے ایکسپوز کیے, نیشنل جیوگرافک کے ویڈیو سے, اور ان کے اپنے دکھائے ہوئے کیمیکل لگائے ہوئے پروسیس جس میں ایکسپوز ہوا ہوا ہے کہ وہ کیمیکل لگاتے ہیں. خود بتایا ان لوگوں نے, خود ہی دکھایا کہ ہمارے پروسیس ہے. تو اس میں کوئی ہولی کام نہیں ہے, یعنی کوئی خدا نہیں کر رہا کوئی عمل, کوئی خدائی عمل نہیں ہے, وہ ایک انسانی عمل ہے. انہوں نے خود ہی مداخلت کی. اور ویسے بھی ان کی جو سڑی گلی جو ڈھانچے ہوتے ہیں اس پہ کوئی کیمیکل لگا دینا اور ویکس لگا دینا, اس سے کوئی وہ تر و تازہ جسم تھوڑی ہو جاتا. اندر سے تو خون سوکھا ہوا ہے, ڈھانچہ ہے سوکھا ہوا ہے, وہ ہوتا ہے. باہر سے انسانی تھوڑا سا روپ بنا دیا جاتا ہے, اور اس سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ کوئی تر و تازہ ہے تو وہ اس کا دعویٰ ہی بے بنیاد ہے. سڑے گلے پھل کو تر و تازہ بولو گے آپ, یا تر و تازہ پھل کو تر و تازہ بولو گے؟ جو تر و تازہ وہ تر و تازہ دیکھتا, سڑے ہوئے کو سڑا ہوا کہا جاتا ہے. لیکن وہ کلیم یہ کرتے ہیں انکرپٹیبل ڈیڈ باڈیز ہیں, انکرپٹیبل. آگے سمجھ میں, انکرپٹیبل ایک ورڈ ہے, میری نظر میں وہ انکرپٹیبل تو ہے ہی نہیں, وہ تو ڈیکمپوز باڈیز ہیں, سڑی گلی, جن کے اوپر میکس کیمیکل لگایا ہے. سمجھ گئے؟ تو دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کی لاشوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی لاشوں کو ان کے مذہبی پیشوا مل کر جس کی وہ چاہتے ہیں ان پہ کیمیکل وغیرہ لگاتے ہیں. پھر وہ لاشیں ہوتی ہیں جن کو دکھاتے ہیں یا ٹی وی پہ, یا وہ اپنے جو ہے نا وہ فوٹوز دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ 500 سال بعد اتنی ممی ملی, انکرپٹیبل. اب انکرپٹیبل کیا اس میں؟ کرپٹڈ ڈیڈ باڈی, کرپٹڈ بولو, کرپٹڈ ڈیڈ باڈی. ہاں یہ بولو کہ کیمیکل لگے کچھ ہے تو اس وجہ سے وہ بچ گئی, لیکن سڑی گلی ہے. جبکہ نیک مسلمانوں کی لاشیں
करप्टेड नहीं है, ट्रूली इनकरप्टेड है, ट्रूली प्रिजर्व्ड है, फ्रेश कंडीशन में, ताज़ा खून भी उनकी लाशों में होता है, बालो नाखून भी उनमें बढ़ जाते हैं, नर्म मुलायम उनका जिस्म होता है, आंखों में उनके ऐसा लगे तो कोई देखे तो पता लगेगा शायद जीता जागता इंसान है, अभी शायद मरा ही नहीं है। जिस्म से उनके बदबू नहीं आती है, अगर कब्रें खोल दो उनकी लाशों के पास बदबू नहीं होती, मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कब्र खोदने वाले को खड़े होते हैं लोग, खुशबुएँ आ रही होती हैं कब्र के अंदर से। ये गैर मुस्लिमों के साथ की लाशों के साथ नहीं होता कि उनकी लाश खोली तो वो जो है ना तरोताज़ा पड़ी हुई है, ना 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 ना, गैर मुस्लिमों के साथ नहीं होता। ये हो रहा है मरने के बाद, ये होता है जो आंखों से देखा जा सकता है। सबूत मौजूद है, rightfulreligion website.com पे चले जाओ, rightfulreligion.com जाओ, देखो सबूत फ्रेश डेड बॉडीज़ के। मोहम्मद ज़ीशान से चैनल पे देख लो, वीडियो फुटेजेस देख लो, वीडियो सबूत देख लो, एक्सप्लेनेशन देख लो अगर तलाश है। तो मौत के बाद क्या हो रहा है, अल्लाह के हुक्म से तमाम काफिरों की, मुर्तिदों की, मुलिदों की, नाफरमानों की लाशें बदबूदारों के सड़गल के ख़त्म हो रही हैं, और अल्लाह के हुक्म से सिर्फ नेक मुसलमानों की लाशें तरोताज़ा हालत में महफूज हो रही हैं। एक कानून उसने सेट किया हुआ है जो सब इंसानों पे अप्लाई होता है मरने के बाद, और एक उसने अपना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन रखी हुई है, एक प्रोटेक्शन रखी है उनके लिए जो नेक मुस्लिम है, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए। और अब सुनो कि ये क्लेम उसने कहाँ किया है, क्योंकि मैंने बात बता दी मरने के बाद क्या हो रहा है, जो आंखों से देख सकते हो। बाकी रिसर्च करनी है खुद करो, मेरा काम बताना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। अल्लाह के फजल से जाओ कुरान में देख लो, अल्लाह ने जो क्लेम किया हुआ है 14 साल पहले दावा किया हुआ है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं है। जाके सूरह बकरा की आयत नंबर 154, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 169 चेक कर लेना। आप कुरान तो पढ़ते हो ना, चाहे मुखालफत के लिए पढ़ते हो, इन दोनों आयतों को देख लो, इसमें क्लेम है किसी का, दावा है किसी का। किसका दावा है? अगर तुम्हें लगता है ये दावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो उनका तो इंतकाल हो चुका, वो ये दावा अगर उन्होंने ही किया है तो अगर उनका तो इंतकाल हो गया तो वो कैसे मुसलमानों की लाशों को महफूज करके रख सकते हैं? बताओ, इसका जवाब तुम दो मुझे। क्या वो कर सकते हैं ये काम? अगर वो ये काम कर सकते हैं और तुम ये समझते हो कि ये काम उन्होंने किया है, तो फिर हर मज़हब का मजहबी पेशवा, कोर मजहबी पेशवा जो उसका बानी है, बानी बीच के उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो बानी है, जिनको बानी माना जाता है, हालांकि दीन इस्लाम के बानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, उनके ज़रिए तो इस्लाम मुकम्मल हुआ है, उनको भेजने के बाद तो मुकम्मल किया गया दीन इस्लाम के जो स्टार्टिंग है वो तो आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन किताबों से हट के बात करते हैं, टू द पॉइंट रह के, कि तमाम मज़ाहिब के जो कोर मजहबी पेशवा हैं, जिनको मजहबी पैरोकारों ने पेशवा या खुदा का बेटा बनाया हुआ है, जैसे कि ईसाईयत में ईसा को, और यहूदियत के अंदर यावे को, और हिंदू मज़हब में राम कृष्ण, और पता ही इन्होंने तो कितने इन्वेंट किए हुए हैं। तो ये जो हैं इनके मज़हब के अंदर इनके मजहबी पेशवा अपने पैरोकारों की लाशों को तरोताज़ा हालत में क्यों नहीं रख पा रहे? अल्लाह कैसे रख पा रहा है? और अल्लाह ही इस्लाम में ही क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस्लाम के मानने वाले अल्लाह को खुदा मानते हैं और बाकी तमाम खुदाओं को रिजेक्ट करते हैं। लेजेंड भी अल्लाह के सिवा बाकी तमाम खुदाओं को क्लियर कट रिजेक्ट करता है, बल्कि चैलेंज करता है, बल्कि शिकस्त दे चुका है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के मदद से 21वीं सदी में तमाम गैर मुसलमानों के तमाम खुदाओं को शिकस्त दे दी नेचर के ज़रिए, अल्लाह की मदद से, बादशाह की मदद से। हाँ, तो बताओ कहाँ है वो कमज़ोर? जो कमज़ोर हैं वो खुदा होते हैं? अल्लाह तो कमज़ोर नहीं है। लेजेंड अल्लाह को शिकस्त नहीं दे सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। बेबस है लेजेंड अल्लाह के सामने, बेबस तरीन मखलूक। लेकिन लेजेंड दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों के तमाम खुदाओं के मुकाबले पर नाकाबिल शिकस्त मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम है, अल्लाह की मदद और उसके फजल और उसकी तौफीक से 21वीं सदी में नेचर की आर्मी के साथ और अल्लाह के मौजज़ाती निशानियों के साथ। अब बताओ क्या है ये? तो वो तमाम के तमाम गैर मुस्लिमों के जो खुदा बने हुए थे, वो अपने पैरोकारों की लाशों को महफूज क्यों नहीं कर पा रहे मौत के बाद उनकी? ये तो आंखों से देख सकते हो ना, हैं? क्यों उनकी लाशें जो हैं उन पर केमिकल लगाने के सबूत मिल रहे हैं कि वो तो केमिकल लगा रहे हैं, और क्यों मुसलमानों के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर मुसलमानों में लाशों के ऊपर केमिकल नहीं लगाए जाते, फिर भी महफूज हैं। तो मौत के बाद, मरने के बाद उनके साथ ये हो रहा है, और इसका क्लेम बता दिया कि अल्लाह ने किया है, दावा उसने किया है, बताया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि कुरान उन पर नाजिल हुआ, उन्होंने क्लेम बताया 14 साल पहले, 14 साल से लेकर अब तक मुसलमानों की लाशें मिलती रहती हैं कब्रों से खुलती हुई, जो तरोताज़ा होती हैं। 21वीं सदी में भी हो गई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह
2 दिन तक उनका जो जिस्म था, उनका जिस्म मुबारक, वो 2 दिन ज़मीन के ऊपर रखा रहा, और उनकी जिस्म के ऊपर विटनेस अल्लाह ने बना दिया मीडिया को और हज़ारों से ज़्यादा आवाम को, बगैर केमिकल लगे 2 दिन ज़मीन के ऊपर लाश तरोताज़ा हालत में पड़ी रही, बदबू नहीं आई, केमिकल नहीं लगाए, लोग आते जाते रहे, मीडिया पे फुटेजेस हैं, आवाम है, 21वीं सदी है, विटनेस इवेंट है। और अगर तुम्हें नहीं पता या पता हो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक भी जो है वो 2 दिन तक, तकरीबन 2 दिन, जो किताबों में है, अब किताब की थोड़ी सी मैं ले रहा हूँ बात, तो 2 दिन तक वो ज़मीन के ऊपर बग़ैर तदफीन के था, फिर उनकी तदफीन की गई थी। तो 2 दिन इधर 21वीं सदी में ले लो, वो वैसे भी सुन्नत पे अमल करने के बड़े शौकीन थे, तो अल्लाह ने उनकी जिस्म को भी 1-2 दिन के हिसाब से सेटिंग कर दी, जो लेजेंड ने एक्सप्लेन की है तो मैं अभी, और प्ले लिस्ट भी एक मौजूद है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, जाओ देखो। ये क्या है? सबूत हैं मुसलमानों की लाशों के, ज़मीन के अंदर तो हैं ही, ज़मीन के ऊपर भी महफूज रहने के प्रैक्टिकल सबूत हैं बगैर केमिकल लगे, क्योंकि केमिकल मुसलमानों की लाशों पर लगा होना किसी काफिर ने आज तक अभी तक साबित नहीं किया। इंतज़ार है लेजेंड को, तो कोई काफिर साबित तो करे सबूत के साथ, प्रैक्टिकल सबूतों के साथ। मुसलमान नहीं लगाते केमिकल, लेकिन काफिर केमिकल लगाते हैं और उनकी लाशें सड़ी गली होती हैं, ढांचे होते हैं। इनके सबूत तो वो उन्होंने भी दे दिए और लेजेंड ने भी एक्सपोज कर दिए अल्लाह के फजल से। ऐसे जब मैं और भी मजहबी पेशवा अपने चैनल चला रहे हैं, वही वाली बात, उनको पता ही नहीं है इस टॉपिक का, लाश का और सड़ने गलने का। वो क्या करते हैं मुसलमानों से या अपने एथिस्ट के लोगों से जब बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है, सुना हुआ है, उनकी बहस यहीं तक लिमिटेड होती है कि जब कोई मुस्लिम उनको ये बताता है ये नेक मुसलमान की लाशों वाला टॉपिक और ये तरोताज़ा के हवाले से, तो वो ये कहते हैं, उनका ये पॉइंट होता है उन एथिस्ट वगैरह का कि लो जी वो देखो गैर मुस्लिमों की भी तो है। और फिर वो क्या करते हैं, गूगल खोलते हैं और सर्च करके इनकरप्टेबल जो भी मैंने बात कही वो वाली डेड बॉडी की तस्वीरें दिखा के कहते हैं ये देखो सबूत। अच्छा, वहाँ तस्वीर को मान लेते हैं, अकल देखो एथिस्ट की, वहाँ वो तस्वीर को सबूत मान लेते हैं फौरन, देखा कहेंगे हाँ ये देखो सबूत है। अब एक बात सुनो, एक मेरी बात सुनो, आप ये कह रहे हो कि इनको केमिकल लगा होगा, केमिकल लगा होगा, आप मानते हो इसको कि इसको केमिकल लगा होगा? पता नहीं। और आप जब वीडियो दिखाओगे इसका वीडियो दिखाओगे फिर वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये तो पिक्चर है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, मुझे ये बताओ कि आप ये कह रहे हो इनको केमिकल लगा होगा, केमिकल होगा या फ्रिज में रखा होगा या बर्फ में रखा होगा या वैसे झूठी तस्वीरें निकाली होगा या नहीं, बात सुनो, या ऐसा होगा कि इसको पेन से बनाया होगा ये फोटो। हाँ अच्छा, पेन से बनाया होगा, यानी क्या है कि फ्रॉड किया है, ये फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड लगता है ये। तो फिर मैं क्यों, आप भी, इसका मतलब है फिर आप भी यही फ्रॉड करेंगे? मैं किसी भी तरीके से फ्रॉड नहीं करता हूँ। अच्छा, जब इनको मुसलमानों की तरोताज़ा लाशों की रियल फुटेजेस वीडियोस दिखा दी जाएं जो केमिकल नहीं लगी हुई और जो कब्र से खुल रही हैं और निकल रही हैं, तो उसको देख के इनकार कर देंगे कि ये सबूत नहीं है। ये है इनकी अकल का मेयार। अंदर मुनाफिकात, अंदर ड्रामेबाजी, हरदर्मी है। असल में खुद सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते। तो जो चीज़ कबूल करना चाहते हैं, अगर वो सड़क पे चलता कुत्ता भी होगा ना, वो इनके लिए सबूत बन जाएगा। और अगर नहीं मानना तो सड़क पे चलता हुआ शेर भी बब्बर सामने आ जाए ना, असली ओरिजिनल, तो कहेंगे नहीं ये कुछ सबूत थोड़ी है, कागज़ का बना हुआ, ये ख्याली है, मेरी आंखों पे जादू हो गया शायद। ये एथिज़म, किस एथिज़म रिलीजन की बुनियाद कहाँ पर है वहमो गुमान वाले इस रिलीजन की? इस पर रख कर जो है ना वो अपनी मौत के बाद नुकसान करने जा रहे हो, इस पर, इस रिलीजन पर जिसकी बुनियाद ही नहीं है कोई ख्यालात और वहमो गुमान के सिवा। और अपने सहारे के लिए उस एक ऐसी बुनियाद पे ये खड़ा है वहमो गुमान की जिसका सहारा लेने के लिए इन्हें दूसरे मज़ाहिब की किताबों को उठाना पड़ता है और उन किताबों को लेके कहते हैं कि ये सबूत हैं, ये इनकी बुनियादें हैं। और अपने जितने इनके दावे हैं, ये जो है ये कि कोई खुदा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो ये दावे हैं, इस पर इनके पास प्रैक्टिकल सबूत नहीं। क्या रह गया भाई इस एथिज़म रिलीजन में? तो मरने के बाद क्या होगा बता रहा हूँ मैं, मरने के बाद ये होगा। और एक और बात सुन लो, जब ये बात मौत के बाद हो ही गई है थोड़ी सी, कि जितने भी मर रहे हैं ना मौत के बाद, काफिर, मुर्तिद, मुल्हिद, ये सारे जहन्नुमी हैं,
سب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو رہے ہیں. جتنے بھی غیر مسلم کفر پہ مر رہے ہیں سب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو رہے ہیں, سوائے بچوں کے, غیر مسلموں کے چھوٹے بچوں کے, ان کے ایکسیپشن ہے. اور جتنے بھی نیک مسلم ہیں جن کی لاشیں محفوظ ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں. مطلب دنیا میں تو میں بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, کہتا ہوں نا کوئی بتا نہیں سکتا. موت کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سن لو لیجنڈ سے. اور جو دیکھ نہیں سکتے وہ تو چھوڑو نا, لیکن جو ہو رہا ہے اس کا اثر ان کے جسموں پر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھو. جو عذاب میں گرفتار ہیں جن کی روحوں کو عذاب ہو رہا ہے ان کے جسم سڑ گل کے بدبودار ہو رہے ہیں. بھائی جب کوئی چیز جلائی جاتی ہے آگ سے تو بدبو آئے گی نا, سڑنے آگ سے کوئی چیز جل جاتی ہے جسم کو جلاؤ آگ سے بدبو آئے گی ناک میں. اور ایک جسم باغ میں رکھ دو ٹھنڈے اچھے سے خوشبوؤں میں تو خوشبو آئیں گی نا بھائی اس میں سے. جب بتایا ہے دین اسلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہے, جب نیک مسلمان مرتا ہے قبر جو ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, جہنم کا گڑھا ہے, تو جو گڑھے میں گھسے گا اور جلے گا اس میں سے بدبو آئے گی نا لاش میں سے. جو جل ہی نہیں رہا اس میں سے بدبو کہاں سے آئے گی؟ جو وہ اس دنیا میں ہو رہا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی, انسین بیریئر, لیکن جو ہو رہا ہے روح کے ساتھ اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ جسم پہ اس دنیا میں نظر آتا ہے. کیا ارے بھائی جب کسی بٹن کو دباؤ گے ریموٹ کے تو کوئی اثر کہیں پہ تو نظر آئے گا نا, اتنا کا عقل کام کرتی ہے. گوگل پہ ٹائپ کرو گے تو رزلٹ آئے گا نا سامنے سرچ ہونے کے بعد. جب کسی کی لاش کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کا رزلٹ اس کی بدبو آنے پہ نظر آ رہا ہے, جس کو نہیں ہو رہا اس کے اوپر بدبو رزلٹ آ ہی نہیں رہا. اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے جسم تر و تازہ محفوظ ہیں, جسم سلامت ہیں. اور ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ان کو آخری نبی ماننے والوں کے تمام نیک مسلمانوں کے جسم بھی محفوظ ہیں اللہ کے حکم سے. یہ ہے موت کے بعد جو ہو رہا. جاؤ اب تم اگر یہ سوچو کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ یار مسلمانوں میں سے بھی تو ایسے کچھ ہوتے ہیں سنانے والے جو ہے نا یہ باتیں کبھی سنی کہ یار یہ کوئی ثبوت نہیں ہے یہ لاش محفوظ ہونا یا نہ ہونا کسی سچائی کا. لیجنڈ تمہیں بتا رہا ہے یہی سب سے بڑا ایک ثبوت ہے دین اسلام اور تمام مذاہب کے درمیان میں کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق کرنے والا تلوار ہے یہ ثبوت. کیونکہ تمام کافروں کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں اور تمام نیک مسلمانوں کی لاشیں سڑنے گلنے سے محفوظ رہتی ہیں اللہ کے حکم سے. یہ ثبوت ہے, یہ پریکٹیکل قابل مشاہدہ نشانی ہے, ثبوت ہے نیچر کے ذریعے, مٹی کے ذریعے. مٹی ہے نا ہوا میں چھوڑ دو, زمین پہ آدم حسین رضوی زمین پہ پڑی نہیں نا جسم جو لاش تھی, ہوا کے اندر کچھ نہیں ہوا, کوئی پروسیس نہیں ہوا ڈیکمپوزیشن بدبو کا. اور مسلمانوں کی لاشیں زمین کے اندر. اگر تم سمجھو انوائرمنٹ سے کوئی فرق ہے, انوائرمنٹ کا کوئی فرق نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے انوائرمنٹ کا, چاہے گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو. اگر انوائرمنٹ ہے تو ہزاروں کئی سو سالوں کے بعد کیسے جسم تر و تازہ سلامت رہتے ہیں. کتنی ہی قبریں مسلمانوں کی کھلی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ثبوت ہیں جن کے ثبوت موجود ہیں میڈیا چینلز وغیرہ پہ اور ویڈیوز کے ساتھ آ چکے ہیں کتنی دفعہ. ابھی پچھلے سال میں کراچی کے اوپر نہیں ہوا تھا, کراچی میں بھی ایونٹ ہوا تھا, آندھی طوفان آ گیا تھا کراچی میں, بھول گئے؟ ہاں وہ بھی اللہ کے حکم سے آیا تھا آندھی طوفان. قبریں اکھاڑ دی تھیں اللہ نے, پھاڑ دیے تھے قبرستان, کراچی کو پانی کر کے بہت سارے قبرستانوں کو بھر دیا تھا. یاد کرنا وہ بھی ایک نشانی تھی لیجنڈ کے آنے سے پہلے کی. لیجنڈ کے آنے سے پہلے ہے جو پورا لیجنڈ تیار ہو رہا تھا تب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ. کیوں بھائی کافی نہیں ہے اتنا؟ لاشوں کی بات ہی تو کر رہا ہوں. اور سننی ہے مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے, بلکہ مرنے کی نشانیں سن لو. ابھی کرونا وائرس جو آیا دنیا بھر میں کیا ہوا, آندھی طوفان تو تھا ہی ہے اللہ کے حکم سے. کتنی لاشیں اٹھی ہیں دیکھ لو, کتنی لاشیں اٹھ گئیں. عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ کرونا وائرس آیا ہے لاشیں اڑ گئیں. پھر کرونا کے وائرس کے ساتھ ہی بعد میں لیجنڈ بھی آتا ہے کرونا کا ہی حل لے کر اللہ کے فضل سے. دعویٰ بھی وہ کرتا ہے کہ کرونا اس پہ اثر نہیں کرتا, چاہے کوئی بھی لہر آ جائے کرونا کی دنیا میں, نتھنگ کین امپیکٹ. کیوں؟ ڈیوائن امیون مسلم ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے. ڈیوائن کرونا امیون مسلم مین آف دا 21st سینچری بائی دا کمانڈ آف اللہ. کیسے حاصل ہو گئی یہ طاقت, کہاں سے آ گئی, کس نے دے دی؟ اللہ نے, اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے, معجزاتی طاقت ہے, ڈیوائن امیونٹی کہتے ہیں اس کو. 100% ڈیوائن امیونٹی. ویڈیو گیم کھیلیں جو کبھی سرچنگ کرنا, وہ لیجنڈس مسٹری کے نائٹس پلادینس سپر پاورز والے 21ویں صدی میں سپر پاور کے ساتھ وہ اللہ کے فضل سے. تو یہ کیوں بھائی اسلام میں ہی کیوں ہے, یہ غیر مسلموں میں کیوں نہیں ہے؟ کوئی جیتا جاگتا انسان بات کر رہا ہے نا, ماضی میں تو نہیں دیکھ رہے, کوئی کتاب میں لکھا ہوا واقعہ ہے, ویڈیو پہ بات کر رہا ہے ایک انسان, ایک مسلم مین, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی,
जस्ट एक उम्मती, और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। ये हाल है उनकी उम्मत के अंदर मौजूद मुसलमानों में से एक मुस्लिम का, और जो सामने नहीं है ना उनकी ताकतों का तो तुम्हें अभी अंदाज़ा भी नहीं है। अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मुस्लिम मौजूद हैं। और मैं जानता हूँ एक मुस्लिम को, सुन्नी मुस्लिम, जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे भी ज़िंदा कर सकता है 21वीं सदी में। ठीक है, तो ये दीन इस्लाम कोई मजाक तमाशा नहीं, कोई ख्याली दीन नहीं है, ये रियल गॉड का रियल रिलीजन है। और रियल गॉड के आखिरी भेजे हुए जो नबी, रियल प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके जो पैरोकार हैं, ये उनके पास जो अल्लाह ने उन्हें ताकतें दी हुई हैं, ये उनका ये वो चीज़ें हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके कमालात क्या हैं और उनकी क्या है, वो प्रॉफिट ऑफ नेचर हैं, कायनाती मौजूदाती रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जो अल्लाह को मानता है और उनको आखिरी नबी मानता है, उसके साथ मौत के बाद क्या होता है, अगर वो नेक है और अल्लाह उससे राज़ी है, तो उसकी जिस्म को अल्लाह सड़ने गलने नहीं देता, तरोताज़ा रखता है, वो जन्नती है। कि उसकी जन्नती होने का सबूत उसकी अपनी लाश होती है, उसका जिस्म होता है। वैसे तो दफनाने का हुक्म है दीन इस्लाम में ताकि पर्दा रहे, लेकिन जिनको अल्लाह चाहता है, या जब मशीयत इलाही होती है, तो कभी आंधी तूफ़ान से, कभी कब्र से, कभी बारिश से कब्रें खुल जाती हैं, खोल दी जाती हैं, ताकि दुनिया वालों में ज़ाहिर हो जाएँ, ताकि गैर मुस्लिम भी देखें। मुसलमानों को तो बहुत दुनिया भर के बहुत सारे मुसलमानों को काफ़ी समझाया बताया कि लाशों को, कुछ मुसलमानों की लाशें ज़मीन पर छोड़ दो, दिखाओ गैर मुस्लिमों को, जिस तरह फ़िरौन की लाश को अल्लाह ने रखा, लेकिन उनकी खोपड़ियों में ये बात नहीं बैठी, बहुत सारों के, अक्सरियत के, तो उन्होंने वो काम नहीं किया। तो फिर अल्लाह ने फिर कोरोना वायरस भेजा, फिर कभी उसने, जो मैंने अभी कराची का पता, उसने कब्रस्तान ही फाड़ दिया, बहुत सारे दिखा दी, एक जगह से लाशों की लाइन खोल दी पूरी कब्रस्तान के अंदर, जहाँ लाशें थीं। अब ये तो अल्लाह को इल्म था ना कि किस कब्रस्तान की किस जगह पे बहुत सारी लाशें तरोताज़ा उसने रखी भी हैं उसी ने, तो उसने वहीं से लाइन पूरी पीछे से फाड़ दी और वो निकल गई। क्या है ये? लाशें ही क्यों? फिर कोरोना से लाशें ही क्यों? अंबार क्यों लग गए लाशों के? ये लाशें लाशें लाशें, इसको समझो, ये समझो, ये निशानी है 21वीं सदी में उनके लिए जो अपनी अकल को इस्तेमाल कर सकें कि ये हो क्या रहा है 21वीं सदी में आंखों के सामने क्या हो रहा है। अरे रियलिटी चल रही है, कोरोना बोलो ना बोलो, लाशें तो उड़ गई ना लाखों से ज़्यादा, है हकीकत तो सब हकीकत है। तो ऐसे मज़हब को जहाँ उनको पता ही नहीं मरने के बाद क्या हो रहा है, जहाँ उनको जानते ही नहीं मरने के बाद क्या होगा, और एक मुस्लिम मैन बता रहा है दुनिया में बैठा हुआ, अल्लाह के फजल से कैमरे पे आके बात कर रहा है कि मरने के बाद ये है जो हो रहा है, और जो हो रहा है वो तो अनसीन है ना। तो किताबों की बात बहुत सारी करी जाए तो ना इनकार हो, लेकिन सवाल है कि पहले मान तो लो, जब मान लिया अल्लाह ही कर रहा है, अल्लाह के सबूत हैं और अल्लाह के सिवा कोई और खुदा कर नहीं रहा, और सिर्फ इस्लाम में ऐसा हो रहा है, तो बस ख़त्म हो गई बात है। अल्लाह को एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो, बो डाउन करो, अल्लाह के सामने सजदा करो और उसको कबूल करो, दीन इस्लाम में आ जाओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानो, इस्लाम को सच्चा दीन कबूल करो, अल्लाह का कुरान को अल्लाह का कलाम मान लो, गेम ओवर। बाकी तमाम अदियान मज़ाहिब को छोड़ दो, मनसूख करार दे दिया गया 14 साल पहले, दैट्स ऑल। क्या जा रहा है तुम्हारा? कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इस्लाम में आगे कुछ पाबंदियाँ हैं जो तुम्हें कानून फॉलो करने होंगे, ये तो इससे अगर डर रहे हो और भाग रहे हो अपने नफ्स को लेकर, है पाबंदियाँ लगेंगी, ये काम ना करो, वो काम ना करो, ये हराम वो हराम, जिसकी वजह से बहुत सारे एथिस्ट नहीं आते इस्लाम में, या बहुत सारे इस्लाम के अंदर जो है उनमें से भी बहुत सारे इस्लाम इसलिए छोड़ देते कि उन्हें पाबंदियाँ पसंद नहीं है इस्लाम की। उन्हें असल में इस्लाम की पाबंदी का मसला नहीं, अल्लाह के लगाए हुए कानून का मसला है उनको, वो चाहते नहीं है अमल करना। तो अगर इस वजह से तुम इस्लाम से भाग रहे हो तो कब तक भागोगे? मुझे बता दो, ईमानदारी से बता दो, कब तक भागोगे? 10 साल, 20 साल, 30, 50, कितनी उम्र है? अगर 20 साल उम्र भी है तुम्हारी, और अगर जो मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं कितना अरसा रह लोगे, हड्डियाँ वो सीधा हो जाएंगी बुढ़ापे में, या हड्डियाँ तुम्हारी टाइम फिश हो जाएंगी, तभी तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा। तो फिर ये एथिस्ट तुम्हें बचाने थोड़ी आएंगे, जिन्हें ये जवाब भी नहीं पता मौत के बाद कामयाब कौन है और नाकाम कौन है। और लेजेंड तुम्हें बता रहा है मौत के बाद तमाम गैर मुस्लिम लूज़र्स हैं, एक्सेप्शनल बच्चों को हटा के, और मौत के बाद तमाम नेक मुस्लिम विनर्स हैं, सक्सेसफुल हैं, वहीं जन्नती, और वो लोग जहन्नुमी। कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आता? अगर ना चाहो तो ठीक है, भागते रहो, दौड़ते रहो। उस सबवे गेम खेला कभी? पीछे पुलिस वाला लगा हुआ और भागे आ रहा तर। तो मौत
तो पीछे है भाई, भाग लो जहाँ तक भागना है दुनिया में, लेकिन याद रखना जो अल्लाह ने जो मौत का फरिश्ता रख दिया है ना मुकर्रर करके, एंड टाइम पे पकड़ेगा, राइट टाइम आएगा और उसने पकड़ लेना झपट्टा दे के, ख़त्म गेम, और चांस भी नहीं मिलेगा। हाँ, सबवे गेम की तरह ये दोबारा स्टार्ट नहीं होगा गेम, ये रियल लाइफ तक ही टाइम है। इसलिए रियल लाइफ में जब कोई बता रहा है ना, तो भाई अपनी रियल लाइफ गेमिंग करेक्टर के अंदर अपना जो करेक्टर चला रहे हो उसको अंदर ग्राइंडिंग करो, थोड़ी सी को फार्मिंग करो। अभी गेमिंग ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, गेमर हो तो समझ लोगे यहाँ से, बाकी मेरी असल बात हो गई। तो थोड़ी फार्मिंग ग्राइंडिंग करो, और जैसे वीडियो गेम के अंदर बहुत सारे क्विज़ और पज़ल और अवार्ड्स और चीज़ें ढूंढी आती हैं, जैसे पबजी हो गया या वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट हो गया या और भी मुख्तलिफ गेम होते हैं। तो अल्लाह ने भी अपनी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन आसमान की मखलूक़ात में बहुत सारे ख़जाने छुपाए, चीज़ें छुपाई, अपने नाम छुपाए, बनाए, लिखे। तुम्हें लेजेंड ने बता दिया, एक्सप्लेन किया, जाओ ढूंढो देखो। बल्कि लेजेंड ने तो अल्लाह के फजल से उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर दिया, सजा दिया, god.nature.org पे लगा दिया, उन्हें खुद थोड़ी क्रिएट किया, वो तो ऑर्गेनाइज़ किया, जमा किया डेटा जो अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने दिखाया, वो लोगों के ज़रिए अल्लाह ने तैयार कराया, लेजेंड तक पहुँच गया, इल्म भी दे दिया अल्लाह ने, खोल भी दिया, बता भी दिया, समझा भी दिया। ये तो अल्लाह कर रहा है ना, असल सुपर पावर तो अल्लाह है इस कायनात की। तो कब तक अल्लाह को झुटलाओगे, कहाँ तक झुटलाओगे, कब तक झुटलाओगे? कोई तुम तो चलो एथिस्ट से बिलोंग कर रहे हो, इस ज़मीन के ऊपर जितने भी अपने खुदाओं को बना के बैठे हुए अल्लाह के मुकाबले पर, वो सब के सब भी मिलकर आ जाएं और वो अपने मज़हब, अपने खुदाओं को पुकार लें अल्लाह के मुकाबले पर, अल्लाह के मुकाबले पर वो अपने खुदाओं को पुकार लें। और ये तो चलो, तो फिर तो वो नामुमकिन है कि वो जीत सकें। मैं इससे और हाई लेवल की बात करता हूँ। अब हाई लेवल क्यों? क्योंकि अल्लाह तो है ही खुदा, अल्लाह से तो मुकाबला वैसे भी किसी का नहीं बनता। लेकिन तुम्हें दिखता, अल्लाह नहीं दिखता तो तुम कहोगे चलो अल्लाह नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो मानते हो ना कि मैं इंसान हूँ, अब मुझे कुछ और ना बना देना, ठीक है, मैं इंसान हूँ। तो भाई जब मैं एक इंसान हूँ तो मैं ये दावा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि रोए ज़मीन के 5 अरब से ज़ायद गैर मुस्लिम अगर मिलकर इकट्ठे हो जाएं और वो सब के सब अपने खुदाओं को मदद के लिए पुकार लें और उनके खुदा अपनी ताकत लगाएं और पैरोकार दुआ करें और अपने खुदाओं को खुश करें, दूध चढ़ाई पढ़ाई सब कुछ कर लें जिनसे उनके खुदाओं को पावरें मिलें, ताकतें मिलें, जो करते हैं ना, शक्तियाँ खुद भी लेना चाहते हैं और देना भी चाहते हैं, जो कुछ। तो एक तो होता है शक्तियाँ लेना चाहते हैं, तो खुदा जिनका ताकतवर होगा, खुदा होगा तो ताकतवर होगा तो देगा ना शक्ति। तो जो शक्तियाँ दे रहा होगा तो वो खुद ताकतवर होना चाहिए, तो इंसान से तो शिकस्त नहीं खाना चाहिए ना उसे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो लेजेंड तुम्हें बता रहा है कि तमाम गैर मुस्लिमों के तमाम खुदा मिलकर अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो इस बात से आजिज़ रहेंगे, महरूम रहेंगे कि वो नेचर की मखलूक़ात पे अपने नाम को लिख के दिखा सकें, नहीं लिख के दिखा सकते। और वो इस बात से भी हमेशा आजिज़ रहेंगे कि वो अल्लाह को नेचर की मखलूक़ात पर अपना नाम लिख कर दिखाने से रोक सकें। तो फिर अब इसमें मेरे साथ क्या मुकाबला बना गैर मुस्लिमों के खुदाओं का? अरे भाई ये बना के मैं बता रहा हूँ, लेजेंड बता रहे हैं ना कि वो ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं कर सकेंगे। और नेचर ही के ज़रिए से लेजेंड ने उन्हें शिकस्त भी दे दी। उसको देखना है, वैसे देखना है, वैसे ही सबूत मौजूद है मोहम्मद ज़ीशान अर्शद चैनल पर क्या कुछ हुआ है। नहीं तो द गेम ऑफ लेजेंड चैनल पे चले आना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है कि अल्लाह के हुक्म से। जाओ सोचो, अकेले में गौर करो, और अगर नहीं तो फिर लेजेंड का काम सिर्फ क्या है, वही जो लेजेंड के, जिनको लेजेंड अपना पीरो मुर्शिद और रहबर, उस्ताद, पेशवा सब मानता है, जो इस पूरी कायनात के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर ही इज़ द वन मुस्लिम मैन ऑफ द यूनिवर्स, द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। जाओ उनको अल्लाह के आखिरी नबी मान लो और अल्लाह को खुदा मान लो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अपना ख्याल रखना। मैं तो ज़ीशान अर्शद, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। चाहे तुझे क्या कहूँ, मेरे सफर